executive committee for organizing such. So, a very good evening to all of you guys. This is Gunjan, and I first of all congratulate our current executive committee for organizing such an interesting event. It's not that we have not talked about this issue, but this time we are more solution oriented and not in the form of protest. We're not here just to protest, but also find solution to various problems. So I extend my warmest welcome to all of you. Today we will try to explore the realm of psychology. We'll try to explicate and understand the layers, multi-layered complexities, intricate layers of human and canine behavior. And for that, we have our speaker with us. We have Mr. Amrut Sridhar Hiranya, sir. Sir, we are really sorry for misspelling your name. You have not misspelled my name. In fact, it's very nice that you spelled it perfectly right. Please go Thanks. ahead. So, really, we extend a warm welcome, sir. And also, we have diverse audience with us. We have students and faculty members from our campus, that is JNU. Welcome, everyone. And we have people who have joined us from outside the campus, faculty members, researchers, and students. So I extend my warm welcome to all of you, and I hope that we are going to have, I'm really sure that we are going to have a wonderful session, an enthralling, enlightening, and discursive one. But before we start, I would also like you to familiarize yourself a little with our forum. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इससे पहले कि हम सेशन को फॉर्मली शुरू करें, इससे पहले कि हम जो मनोवैज्ञानिक परतें हैं जीव जंतु और मानव जाति के मनोवैज्ञानिक परत, कई सारी परतें जो हैं उनको हम एक्सप्लोर करें, इससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप जो हमारा फोरम है, जिसे हम पहले विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स फोरम कहते थे और अब उसका नाम विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स फोरम है, थैंक्स टू द न्यूएंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज. तो हम जानेंगे कि वो फोरम क्या है, what does it stand for, what is its significance, both symbolic and literal. And we have with us Mr. Sheikh Mohammed Kash, who is our former convener, and thanks to this pandemic that they have actually served for 2 years. Kudos to you all, guys. So Muhammad will actually tell us what kinds of activities we undertake and what we actually symbolize. So without taking much time, I'd like to invite Cash. Cash, please go ahead. Thank you. Thank you, Gunjan, and thank you for the opportunity. First of all, a very hearty welcome to all of you guys, and special thanks to our esteemed speaker. Thank you, sir. हमें समय देने के लिए, और we are really eager to hear you on this particular topic. But as Gunjan just has said, इससे पहले कि हम formally हमारे ऑनरेबल स्पीकर को सुने, ये ज़रूरी है कि हम फोरम के बारे में थोड़ा सा जान लें. और मैं इस बात को एक बार फिर से रिएटरेट करना चाहूँगा कि हमारे फोरम का नाम, जैसा कि अभी गुंजन ने बताया, ये विजुअली इम्पेयर्ड JNU विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स फोरम है. ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेनी टाइम्स मैंने लोगों को हमारे फोरम को विजन फोरम या JNU फोरम कहते हुए सुना है, और ख़ास तौर पे ये इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली हमारे कैंपस को ज्वाइन किया है. नाउ हमारे पास एक फॉर्मल स्ट्रक्चर तो एज सच नहीं है, हमारा कोई रजिस्टर्ड बॉडी एज सच नहीं है फोरम की, परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमने हमारे सीनियर्स से सुना है कि आज से तकरीबन 12 से 13 साल पहले हमारे फोरम को एस्टैब्लिश किया गया था. और मुझे याद है जब मैं 2013-2014 में मेरा एडमिशन हुआ था JNU में मास्टर्स में, तो उस समय के फ्रेशर्स पार्टी में एक हमारे सीनियर ने कहा था कि जब फोरम को एस्टैब्लिश किया गया था तब HK यूनिट जैसी कोई चीज़ तक नहीं थी. और आप समझ सकते हैं, जहाँ पर हेलन केलर यूनिट जैसी चीज़ ना हो, वहाँ पर कंप्यूटर्स, जॉज, स्कैनर्स, कर्सवेल,
इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होना तो तकरीबन नामुमकिन था. So what basically I am hinting at is the point that समय के साथ साथ फोरम के एक्टिविज्म और कलेक्टिव एक्टिविज्म की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमने पास में हासिल की हैं. ऑब्वियसली हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सभी उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें वन बाय वन, क्योंकि मैं हमारे ऑडियंस और हमारे स्पीकर के बीच ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बताना समय के हिसाब से ज़रूरी लगता है, ताकि हमारे जो नए मेंबर्स हैं या जो जिन्होंने पहली बार फोरम की किसी एक्टिविटी को आज पहली बार ज्वाइन किया है, उनको पता चले कि फोरम ने पास में किन चीज़ों को अचीव किया है, कौन से प्रोग्राम्स वो ऑन रेगुलर बेसिस करवाता रहा है. सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो फोरम है ये हमारे कैंपस के विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. इनफैक्ट कैंपस में बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं. उनमें से जेएनयू फोरम, जेएनयू विजुअली स्टूडेंट्स फोरम एक ऐसी स्टूडेंट्स बॉडी है जो पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है. और ये रिप्रेजेंटेटिव केवल नॉमिनल नहीं है, केवल नाम तक सीमित नहीं है. इसका जो सिग्निफिकेंस है वो इतना है कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम न केवल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने तक बल्कि एक्टिविज्म में भी काफ़ी फोरफ्रंट में रहे हैं, जो कि आज हमारा करंट टॉपिक है. डॉग मिल्स, डॉग के साथ कैसे बिहेव करें या उनके साथ किस तरीके से हमें अपने आप को एडजस्ट करना है एनवायरनमेंट में. इवन इस इशू पर हमने पास में कई बार कई सारे धरने या कई सारे प्रोटेस्ट किए हैं विद इन द कैंपस. सो हमारा जो रीच है कैंपस में वो केवल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना या डिसेबिलिटी अवेयरनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमसे जुड़े कई इश्यूज पर हमने पास में एक्टिविज्म का भी रास्ता अपनाया है. इस रास्ते को भी चुना है. जहाँ तक प्रोग्राम्स की बात है तो आप सभी जानते हैं कि हम सभी हमारे नए फ्रेशर्स जो कि पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज ज्वाइन करती है हर साल कैंपस को, उनके लिए हम फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं साल के शुरू में. उसके बाद में 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल व्हाइट केन डे होता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं. इसके बाद हम 3 दिसंबर का जो इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है हम उसे सेलिब्रेट करते हैं. बिसाइड्स 4 जनवरी का हमारा मेमोरियल लेक्चर होता है, लुई ब्रेल मेमोरियल लेक्चर. आप सभी जानते हैं 4 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी होती है लुई ब्रेल जी की. ये वो प्रोग्राम्स है जो हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में फोरम के बिहाफ पे करवाते हैं. लेकिन इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, यूनिक प्रोग्राम्स हमने पास में करवाए हैं. और आज का ये जो प्रोग्राम ये जो टॉक है, ये जो हमने रखा है, ये उसका एक उदाहरण है कि हमने ऐसे कई अलग अलग इश्यूज़ पे, अलग अलग मुद्दों पर हमने प्रोग्राम्स और वेबिनार्स रखे हैं, सेमिनार्स रखे हैं, वर्कशॉप्स रखे हैं. और न केवल वेबिनार्स और सेमिनार्स और वर्कशॉप्स, बल्कि हमने एज आई सेड कई सारे एक्टिविज्म के चैनल्स को भी एक्सप्लोर किया है हमारे इश्यूज़ के लिए, हमारे कंसर्न्स के लिए. ये एक बात मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जेएनयू में ऐसी बहुत कम बॉडीज़ हैं, स्टूडेंट्स बॉडीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो कनेक्शन है वो इतना अच्छा है जितना कि हम फोरम मेंबर्स या फोरम के कमेटी का होता है. ये बहुत यूनिक बात है अपने आप में. और यही वजह है कि कई बार हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, ख़ासतौर पे हमारे प्रोग्राम्स को या हमारे कंसर्न्स को. ऑब्वियसली सारे कंसर्न्स तो एड्रेस नहीं किए जाते, बट एटलीस्ट उन पे ध्यान तो दिया ही जाता है. जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे कैंपस को ज्वाइन करने वाला हर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी हमारे फोरम का मेंबर होता है. और हर साल हम ही फोरम मेंबर्स में से कुछ लोगों को कमिटी में चुना जाता है और 1 साल के लिए उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो फोरम से जुड़े सभी डिसीजंस को लें और फोरम के बिहाफ पे सभी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें. जहाँ तक ऑब्जेक्टिव्स की बात है तो हम एज आई सेड पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ के सभी इश्यूज़ को जो कि कैंपस से जुड़े हुए हैं उन्हें हम रेज करते हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं. और न केवल विद इन द कैंपस बट कई बार तो आउटसाइड ऑफ द कैंपस
के भी कुछ इश्यूज पे, क्योंकि मुझे याद है सोशल मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ आपके जो सिर्फ स्पेस या प्लेस तक लिमिटेड नहीं होती, राइट? आप सभी मेरी बात से आई सपोज अग्री करेंगे। तो कई बार हमें आउटसाइड ऑफ द कैंपस के इश्यूज को भी हाईलाइट करना होता है थ्रू आवर प्रोटेस्ट, थ्रू आवर एक्टिविज्म, और फोरम हमारा ये करने में अब तक सक्षम रहा है। तो हम उन सभी राइट्स बेस्ड इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो डिसेबिलिटी इन जनरल एंड पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी इन पर्टिकुलर जुड़े हुए हैं। इसी प्रक्रिया में मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं, और मैं आज भी इस चीज़ को रिएटरेट करना चाहता हूं कि एक व्यक्तिगत लेवल पर जेएनयू में किसी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को रिकग्निशन मिलना ये बहुत मुश्किल है। ये इसलिए भी मुश्किल है न केवल जेएनयू में बल्कि एट द सिस्टमिक लेवल एट लार्ज हम अगर देखें तो एक्सक्लूजनरी पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कलेक्टिवली फोरम के बैनर तले, फोरम के टाइटल तले हम इकट्ठा आएं और हमारे हमसे जुड़े इश्यूज पर हम अपनी बातें रखें, अपने इश्यूज को एड्रेस करवाएं, और फोरम उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है जो हमें ये पावर, हमें ये शक्ति प्रदान करता है। तो मैं मेरे सभी जूनियर्स तो कहना शायद सही नहीं होगा, परंतु मेरे जितने नए मेंबर्स जुड़े हैं इस साल फोरम के, मैं उन सभी को हम सीनियर मेंबर्स की तरफ से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे फोरम की ये जो रिच लेगेसी है, आप इसे आगे बढ़ाने में हम सभी फोरम मेंबर्स का सहयोग दें, क्योंकि फोरम ये कुछ 1 सालों में या कुछ 6 महीनों में नहीं बनता। इसको बनने के लिए, इसकी लेगेसी एस्टैब्लिश होने के लिए काफ़ी समय लगता है, और उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस नोट के साथ के आने वाले समय में आप सभी फोरम के कामकाज को आगे बढ़ाने में कमेटी का, फोरम का और हम सभी का साथ देंगे। मैं गुंजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कैरी ऑन विद द प्रोसीडिंग। थैंक यू। Thank you so very much, Mohammed. Thanks so much for portraying our forum in such beautiful words. बहुत बहुत धन्यवाद फोरम की लेगेसी को इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए। मैं अब हम सुनिश्चित please everyone mute yourself. Those who are not speaking are requested to mute yourself. तो मैं धन्यवाद करती हूँ मोहम्मद का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे फोरम के एम्स, ऑब्जेक्टिव और लेगेसी को पोर्ट्रे किया। थैंक यू मोहम्मद। हमारे सीनियर्स, हमारे कलीग्स, जूनियर्स और जो बाहर से ऑडियंस हमारे साथ हैं, उन्होंने अब फोरम को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड future course of action, which will be discussed soon as in by the convener in the coming programs. Thank you so much. So now let's move to the topic. And as I said in the very beginning, that today we are going to explore the realm of psychology, mystery, science, and whatnot. Basically, we would like to understand the behavior of canine and humans, and whether it is possible for us as visually impaired students and faculty, basically. Sorry. So whether it is possible for us to deal with such beautiful, lovable, yet sometimes threatening creatures, not because of anything, not because we hate dogs, but just because of the fear of the unknown. क्योंकि हमारे अंदर एक अनजाना सा डर है, हमें पता नहीं, पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर जो हमारे ऊपर होता है कि अगर हम किसी डॉग पे पैर रख देंगे। आई रिमेम्बर, वी इनफैक्ट रिमेम्बर दैट दिस यूज्ड टू बी आवर वर्स्ट नाइटमेयर, जब हम लाइब्रेरी जाते थे और कुत्तों के ऊपर पैर पड़ता था और सडन डॉग बाइट्स होते थे। So it's a kind of, fear of the unknown. So we would like to explore all of these things, all of these facets, complex facets. And to talk about that, we have our speaker. In Twelfth Night, Shakespeare says, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. And our speaker, our Amrit sir, our dog guru, is
I mean, he falls in the second category. He recognized his talent and honed it to the level of perfection. सर हमारे एक ऐसे नायाब हीरे हैं जिन्होंने अपने निच को पहचाना, अपने हुनर की तलाश की और उसे इतना तराशा कि आज वो अपने जैसे एक अतुलनीय व्यक्ति हैं और आज हम उन्हें सुनेंगे और समझेंगे कि क्या हमारी विजुअल इम्पेयरनेस के बावजूद हम अपने फियर को, अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इस पर जीत हासिल कर सकते हैं? So without, I mean, I'm sure the more I talk about him, the more fascinated the audience will be. So I'd like to invite Varun to formally introduce him. There are so many things which we don't know about him. So I'd like Varun, who's a research scholar in JNU, to introduce Sir formally. And thanks to Varun that we have access to Sir, that we could reach him. Varun, please. Yeah, I'm able to. Yeah, my voice is able to listen or hear. Yes, you're audible. Yeah. Ambrus Shidhar Aranya. Yeah, I'm spelling wrongly, I think. Yeah, Amrut is basically from Bangalore, from Karnataka. He done schooling and other is engineer degree from Bangalore, and later on is very passionate about the dog and street dogs. Street dogs, and he went to the with the passionate and love of dogs. He went to the Unitech in to pursue the canon psychology. The canon psychology basically understands the how to behave with the dogs, and how to we behave with the dog. As Ambrus says that we should train the dog owner, not the dogs. And also is Dog Guru, the private limited, give a training trains to the Karnataka police and other corporate in the Karnataka's Karnataka corporate fields, and basically trains in the dog fields in the narcotic detection, explosive detection, and the narcotic and explosive detection, and patrolling and security, mainly the patrolling and how to behave, and how to security reasons, and patrolling the houses and corporate fields. And recently the Jindal plant in Ballari employed is took his advice to their plants. And yeah um the already Gunjan explained about the all the possibility, all the what he's going to talk about in this talk, about the canon psychology. This is the basic introduction about him. Sorry, I left out many things about him. Sorry for that. Yeah. Thank you so much. We are eager to listen to the Amrut talks without the time delay. Yeah, Please. sure. So, Yeah. without wasting much time, I mean, Varun has talked about most of the things, but I must add one more thing about his love for the country. You know, as a person who has received so many laurels and who was actually the topper of his course in 2009, he was offered a lot of jobs abroad, and of course, he has achieved so many laurels. इन्होंने बहुत सारे laurels achieve किए हैं और जैसे कि अपने आप में ही ये एक अतुलनीय व्यक्ति हैं, तो इन्होंने काफी सारी पोजीशंस इन्हें ऑफर की जा रही थी, लेकिन इनका देश प्रेम इतना अमूल्य है, इतना इट इज सो अनपैरेलल्ड दैट ही केम बैक टू इंडिया। वो भारत आए और उन्होंने भारत में रहकर अपनी मातृभूमि को मातृभूमि का जो ऋण है उसे अदा करना चूज किया, पसंद किया। And he is here. He is appointed as so many things as Varun has already talked about. So we salute your patriotism as well, sir. And I hope, मैं आशा करती हूँ कि हम सब ये जो अभी डिस्कर्सिव लेक्चर होने वाला है, जो व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत होने वाला है, इससे बहुत कुछ सीखेंगे
और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ जो हमारी ऑडियंस है कि आप अपने सवाल लिखते जाएं। आपको मौका मिलेगा जब आप सर से बातें कर पाएंगे, जब आप उनसे सवाल पूछ पाएंगे। So without wasting much time, I'd like to invite our sir, our dog guru, on the virtual dais. Sir, please. गुड इवनिंग एवरीबडी। आज फिलहाल मैं आपका फोरम के लिए बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा एक मौका मिला है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, और डॉग की तरफ से आप लोगों को जब भी कुछ एक्सीडेंट हुआ है या हादसा हुआ है, या डॉग के तरफ से जो प्यार मिलना था वो अब तक शायद जिनको नहीं मिल पाया है, या जिनको भी मिल पाया, पूरा जिनको नहीं मिल पाया है, वो दिलाने का कोशिश में ये टॉक ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। फिलहाल आई विल बी टुडे टॉकिंग अबाउट the fear that people have on dogs primarily, and second thing is that the love that people were supposed to get out of dogs, the affection they were supposed to get out of the man's best friend, if they already have, and if they've not been able to receive it completely, or if they've not had it at all, so how we could address this issue and how we can go ahead with it. I'm very proud to be a part of this talk myself. मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आज ये बात करने का एक मौका मिला है। फिलहाल मुझे इस बात में ज़्यादा आज इतना ज़्यादा खुशी मिला है, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए एक महत्वपूर्ण एक सेशन है, बिकॉज कल जो yesterday 17 था, तो मैं सुबह था CRPF जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, हमारा देश या हमारा कॉन्टिनेंट एशिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री डॉग फोर्स माना जाता है, जहाँ 1000 से ज़्यादा बेल्जियन शेपर्ड्स ट्रेन किया जाता है, और वो आज तक पिछले 7-8 साल में 300 किलो से ज़्यादा बारूद एक्सप्लोजिव्स बरामद किए गए हैं डॉग की तरफ से। तो वहाँ पे जब मैं कमांडोज को या उनके सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करता था, तब भी मुझे इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ अपने बारे में, या अपने मेरे पास जो थोड़ा ज्ञान मैंने आज तक लिया है डॉग से, कि उनको अच्छा समझ सकूं और उनके तरफ से जो लोगों को डर है या फिर प्यार चाहिए वो दिला सकूं। तो I'm feeling really proud that I'm feeling more proud for this moment compared to what I had yesterday when I was training dogs, the commandos for the CRPF, being India's or Asia's largest paramilitary dog force, where we have 1,000+ Belgian Shepherd who have detected 300+ kilos of explosives. If not detected, probably our country would have been 1/3 of what it is today, and this has just happened in the last 6 to 7 years. तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है। अभी डॉग और मैन का हमारा जो बांधव्य है, फिलहाल इसमें 3-4 तरीके का ये है। वन, डॉग्स अनकंडीशनली हमें प्यार करता है, उनको ये समझ में आए या ना आए कि हम हमारे जो भी हमारे में कमजोरियां है उसको वो कभी वैल्यू नहीं करता है। डॉग नेवर वैल्यूज एनी सॉर्ट ऑफ ए डिफिशियंसी भी है, हम गोरे है, शॉर्ट है, नाटू है, मोटू है, जो भी है, डॉग्स को जितना प्यार देना है वो हमेशा देता है अनकंडीशनली। अभी वी विल टॉक अबाउट आर JNU का जो आज बात चल रहा है, तो इसमें एक तो है कि आप लोगों को पहले विल टॉक फॉर द फियर पार्ट ऑफ इट। तो लोगों को डर है कि ये जानवर जो है, जो हमने देखा नहीं है या फिर पूरा देखा नहीं है या पूरा महसूस नहीं किया है, उसको उसके ऊपर डर रहना इज ट्रू, बिकॉज होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट इन दिस फोरम कि आर फोरम मेंबर्स अरेंज few sessions in the future where we could arrange getting a dog to your forum and getting people to meet them, experience them, cuddle them, love them. मैं फोरम से दरख्वास्त करता हूँ कि एक आगे जाके एक ऐसा मौका मिले जहाँ पे फोरम को कुछ भी बिना चार्ज के तरफ, बिना ₹1 फोरम को चार्ज नहीं करते हुए, आई वुड वांट टू ब्रिंग माय डॉग देयर। हमारा थेरेपी डॉग जो लोग उसको मिल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, उसके साथ घूम सकते हैं, उसको वॉक करा सकते हैं, ताकि उनको एक महसूस हो, एक्सपीरियंस हो कि ये एक जानवर है। हर जानवर, हर इंसान की तरह उनमें भी खामियां हैं, अच्छाइयां हैं। लाइक एवरी अदर ह्यूमन और एनिमल, बोथ एवरी डॉग और ह्यूमन हैज पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। सो आई वांट फर्स्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सपीरियंस द पॉजिटिविटी, द लव, द अफेक्शन दे गिव यू। उनका जब वो हमें हाथ चाटते हैं या फिर हमें गले मिलते हैं, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स,
जो हमने आप लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन महसूस जिन्होंने भी नहीं किया है उनको महसूस करने का एक अवसर के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ. आई रिक्वेस्ट एन ओकेजन वेयर ऑल द अदर चिल्ड्रन और पीपल वुड वांट टू मीट एंड ग्रीट द डॉग्स. वो मेरे तरफ से रहेगा. आई वुड वांट टू ट्रैवल देयर एंड अरेंज अ डॉग देयर और ट्रैवल अ डॉग फ्रॉम हियर फ्रॉम बेंगलुरु टू गेट अ डॉग देयर. दिस इज टू एक्सपीरियंस द लव एंड अफेक्शन. और आगे मेरा ये सोच विचार है कि आई वुड बी एबल टू ट्रेन एटलीस्ट 1 or 2 सैंपल ब्लाइंड गाइड डॉग्स. आपके लिए सैंपल इसलिए बता रहा हूँ कि उसका सक्सेस रेट देखे इंडिया में और बहुत चाहिए होंगे. कम से कम यूनिवर्सिटी में रख के यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए अगर मैं एक डॉग या 2 डॉग को आपके लिए ट्रेन कर सकता हूँ, जो ब्लाइंड गाइड डॉग्स दुनिया भर में है और इंडिया में नहीं है. ब्लाइंड गाइड डॉग्स क्या होता है? ये ऐसा डॉग्स है, नॉर्मली लैब्राडोर एक नस्ल है जो काफी सारा ट्रेनेबिलिटी में पुलिस में, एयरफोर्स में या फिर एयरपोर्ट्स में हो. पहले लैब्राडोर्स ही थे जो हर पुलिस का कुत्ता था या हर सर्विस डॉग था. लैब्राडोर इससे ये एक नस्ल का डॉग है जिनमें कम बाल होते हैं, छोटे मतलब वो तकरीबन 30 किलो तक आता है उसका वजन, और वो आपके नी तक मतलब 1.5 to 2 फीट तक उसका हाइट रहता है. बहुत प्यारा जानवर है, बहुत प्यारा डॉग है. दीज आर डॉग्स जो उनके रंग में चुना गया, तो एक ब्लैक आता है और एक क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर में आता है. वो जात को दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ है. उसको लैब्राडोर नाम आने से पहले कई हजार साल पहले उनको सेंट जॉन्स डॉग के नाम से जाना जाता था, बिकॉज वो अस्पताल के काफी कामों में मदद करते थे, जैसे कि थेरेपी हो. तो यहाँ पे दुनिया भर में जितने भी ब्लाइंड गाइड डॉग्स है, ये वो डॉग्स है जिसको ऐसा ट्रेन किया जाता है कि आपके आंख के बदले में वो आपको हर जगह लेके जा सकते हैं. जैसे आप उनको बोलेंगे लाइब्रेरी लेके जाओ तो लाइब्रेरी लेके जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कैंटीन लेके जाओ तो कैंटीन लेके जाते हैं. वो डॉग को ये सहन शक्ति इतना उसमें भरना है कि गलती से आप उसके ऊपर पैर रख दिए या फिर उसको दर्द हो गया, ऐसे कुछ भी होने से, या दूसरे कुत्ते उसके सामने भाग रहा है तो उसको भगाना हो या फिर उसके पीछे जाना हो, उससे झगड़ना हो, वो नहीं होना है. और खाना उन्हीं से लेना है जिनके साथ वो रहे, 24 घंटे उनके साथ रहना है. ये है ब्लाइंड गाइड डॉग. और आज ये सोच आया है, जैसे कि एक दिन आप लोगों को सोच आया था कि एक डॉग गुरु है जिनसे हम बात करेंगे हमारा डर मिटाने के लिए या डर कम करने के लिए या कटाने का इंस्टेंसेस कम कराने के लिए. वो सोच आज कार्य रूप में बदला है. A thought which once upon a time came into somebody in your organization stating that there is somebody called Dog Guru, we would get him to talk to us, and because of his talking, probably we would get lesser bitten, lesser incident, lesser accidents, and we probably would learn more about dogs. वो सोच आया था. Today that's the thought has brought into a practice. We are already I'm talking to 18-19 more people here listening to me. So similarly, the thought that has come into my head today is to arrange or train a guide dog for the blind. These dogs are Labradors basically across the world. They've been very successful in walking people to where they want to go. Blind people, take them across the streets, take them to the library in your university, probably to the canteen, probably to your classroom, wherever. However, being your eye is the motive of the blind guide dog. So I'm here to train them and I would love the forum to take it up. पहले तो एक एक्सपीरियंस रहेगा, एक डॉग को कभी लेके आके या फिर अरेंज करेंगे कि आप लोग उसको प्यार करें, मिले जुले, एक कॉन्फिडेंस हो जाए. उसके बाद we can probably get to another bigger project of training dogs to be a guide dog to the blind. We could start with JNU itself to begin with and take it up from there. These are 2 things I would want to offer, and both the things I'm offering मेरे तरफ से या मेरा सर्विस जो है वो रहेगा फ्री. बाकी जो भी है अगर उसका कुछ और उसमें पड़ता है तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन को देखना है क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा उसमें 1 रुपए का फीस नहीं रहेगा. दिस इज द बेस्ट आई कैन डू. नाउ कमिंग बैक टू फियर ऑफ डॉग्स. फियर होना सहज गुण है. इट्स नेचुरल टू बी स्कैर्ड ऑफ. पहले तो जो लोगों ने देखा है, महसूस किया, पाला है, खुद को डर लगता है. तो जिन्होंने देखा नहीं होगा या पाला नहीं होगा और उनको 1 या 2 बार हादसा भी हो गया कि उसके ऊपर पाँव रख दिए, तो डर होना नॉर्मल है. तो इसके लिए हमें डर का सामना करना है. जो आप लोग मेरे जैसे लोगों के लिए आप जितना काबिल है कि दुनिया का सामना कर रहे हो, तो हमें आपसे सीखना है. तो एक तो आप ऑलरेडी उसमें माहिर हो कि आप डर के मुकाबले में हो, दुनिया के मुकाबले में हो, तो उसके साथ ये बहुत बहुत छोटी चीज है. इफ पीपल आर थिंकिंग दैट इट्स गोना बी अ बिग थिंग, अ बिग चैलेंज टू फेस डॉग्स, नो दे आर नॉट. यू हैव फेस्ड द वर्ल्ड
and facing a dog will be a very very simple thing for you. You don't have to break your head too much on that. बहुत आसान तरीके से easy way में हम उसको डील करेंगे. पहला चीज तो ये है कि हमें ये पता होना है कि किसी और की तरफ से हमें पता होना कि डॉग्स ज्यादातर कहाँ रहते हैं. एक दूसरा, उनको क्या पसंद है. डॉग्स पैक एनिमल से, जैसे मंकी टू मैन, बंदरों से जैसे मनुष्य हुआ है, मानव हुआ है, वैसे वुल्फ से डॉग्स ओरिजिनेटेड हुआ है. कई हजार साल पहले लोग जाते थे, नोमैडिक पीपल थे, तो वो नॉनवेज हमेशा खाते थे, तो जो वो खुला मांस खाते थे दूसरे जानवर का. रात को जब वो लोग सोते थे तो ये वुल्फ्स आके वो बचा कुचा, दे स्कैवेंजर्स, तो बचे कुचे हंट करने से आसान होता है, बचा कुचा मीट खा ले, तो खाना जो बचा है वो खा ले. तो वो करते करते दीस डॉग्स, ये भेड़िए जो थे बाद में जो वुल्फ बने, वो टेरिटरी प्रोटेक्ट करते थे जहां पे इंसान से हमें बिना मेहनत से बचा उचा खाना मिलता है. That was misunderstood, misinterpreted by a lot of people thinking they are protecting them. ये जानवर उनको प्रोटेक्ट नहीं करता था, उनका टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता था. तो आज अगर जेएनयू में ऐसा कुछ डॉग्स है, लाइब्रेरी के आसपास होंगे, कहीं पे भी होंगे, जो आपको अभी तक कुछ एक्सीडेंट्स हुआ है, वो उनका एरिया प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे रहते हैं, इसलिए नहीं कि किसी और को काटे या फिर कुछ और के लिए. तो दे आर टेरिटोरियल. तो उन बच्चे को वहां से हटा देने से फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो वापस अपने टेरिटरी में आ जाएंगे या फिर दूसरे डॉग्स आके उनको वो अपना टेरिटरी मानेंगे. तो हमें जो स्टिक है, जो स्टिक के लिए आपके पास बेल भी रहेगा, वो डॉग्स को सेंसिटिवाइज करना है कि वो स्टिक या बेल से दूर रहने के लिए. तो वो डॉग्स जो वहां पे है, पहले उनको अगर हम एक प्रोजेक्ट ऐसा कुछ बन सकते हैं बाद में, जो मैं उनको गाइड करूंगा, मुझे वहां आने की जरूरत नहीं है, फोटोज वीडियोस भेज सकते हैं आप वहां से. उसके माध्यम से वो कितने डॉग्स है जो नॉर्मली, ज्यादातर हमारा डेंजर जोन है कि यहाँ पे सर ऐसे कुत्ते हैं कि हमेशा रहते हैं, तो वहीं पे हमें आना जाना होता है, वहीं पे ज्यादा इंसिडेंट्स हुआ है. तो वो जगह से थोड़ा उनको दूर कैसे भेजा जाता है जब भी एक ब्लाइंड आदमी आ रहा है, क्योंकि स्टिक तो हमारे पास है ही, तो उसके साथ बेल के साथ नीचे अगर एक ऐसा कुछ डाल सकते हैं जो घुंघरू है, समथिंग दैट इज लाइक रिंग जिगल, दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. एंड उससे पहले डॉग्स को ये समझाना है कि जब भी ये बेल होता है उनको दूर जाना है. तो we will have to guide them on that part of it primarily. I'm talking presently with the situation that I have heard of or I've understood. We'll get to the question and answer where you can help me with more number of questions कि आपको कुछ और जब हुआ है क्या करेंगे. तो these are time कि जब भी ये बेल होता है, उन डॉग्स को एक कोने में खाना मिलेगा, जैसे कि लाइब्रेरी के पीछे में खाना मिलता है. तो ये होना है. और हम लोग क्या कर सकते हैं आगे जाके कि वहां पे थोड़ा बहुत जो कैंटीन का बचा वाला खाना होता है वो रखेंगे या बिस्किट्स रखेंगे. तो जब भी लोग जा रहे हैं वो जगह में बेल करेंगे तो कुत्ते अपने आप उठ के दूसरी तरफ जाना है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पे उनको वो बेल के माध्यम से खाना मिलेगा. या फिर पहले जो भी बचा कुचा खाना डालेंगे तभी बेल मारेंगे दूसरी जगह से. तो दूसरी जगह बेल मारने से एक ऐसे जगह जहाँ पे आप लोग जाते नहीं है, कुड बी अंडर द स्टेयरकेस, सीढ़ियों के नीचे हो सकता है या एक छोटा पेड़ के नीचे हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको जाने से आपको लगेगा, तो आप लोग जाते नहीं है जो हाइट में कम है, तो ऐसा जगह डॉग जा सकते हैं, वो एक कर सकते हैं. दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर एक बैरिकेड बनाएंगे आसपास में, जो खाली एक 10 फुट का 10 फुट रहेगा, डॉग्स को बचा कुचा खाना वहां डाल के उसको अंदर जाने के लिए गेट तो रहेगा, बाहर आने के लिए नहीं रहेगा, वो भी बना सकते हैं. वहां का एनिमल वेलफेयर बोर्ड से मेरा कांटेक्ट करा दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा. डॉग्स को हम रीलोकेट करना गैर कानूनी है, वो नहीं करेंगे. डॉग्स को मारना गैर कानूनी है, वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी जानवर है, उनको भी जीने का शक्ति है. तो जो टाइम है, सुबह समझे 8 बजे से शाम 6 या 8 बजे तक लाइब्रेरी खुला रहता है, वो टाइम तक डॉग्स को वहां पे अंदर रख सकते हैं, खाने के माध्यम से उसको अंदर ले आके 3 4 5 10 जो भी जितने भी कुत्ते वहां पे अंदर रहेंगे. छोटा सा बैरिकेड रहेगा, 10 फुट का 10 फुट रहेगा, ग्रिल रहेगा, चारों तरफ अंदर जाएंगे सुबह की तरफ खाने के लिए, फिर रात को छोड़ा जाएगा ताकि वो पूरा जगह का सुरक्षा करे जहाँ पे भी लोग कम है. This is two things. One, we can keep them inside enclosure that could be made by a 10 by 10 area where dogs are fed with the leftover canteen food. So the dogs go in there in the morning by 7-8 o'clock, उसको बंद कर देंगे. शाम को 8-9 बजे जब लाइब्रेरी बंद हो जाएगा तभी उनको खुला छोड़ सकते हैं ताकि वो अपना टेरिटरी मार्क करे. This is the simple easy methods. मुझे जो 1 घंटा दिया गया है, जिसमें आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, उतने में साधारण आसान तरीके से हम कैसे अपने आप को कटाने से बचा सकते हैं, उस पे मैं ज्यादा
इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। बाकी जो उससे जो प्यार मिलता है, जो प्यार करेंगे वो सब बाद में हम कर भी सकते हैं। नहीं करने से भी उसमें दर्द नहीं होगा, इसमें दर्द हो रहा है। तो एक तो वो जगह को खाली करने के लिए हम डॉग्स को रिलोकेट नहीं करेंगे। लाइब्रेरी के आसपास हो, ऊपर हो, नीचे हो, जहां पे भी छोटा सा बैरिकेड अगर करा सके उनको रख सकते हैं। दैट इज ऑप्शन 1। ये सभी ऑप्शन है, कुछ जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑल माई आइडियाज विल हैव देयर ओन चैलेंजेस। आप लोगों को वहां जाके उनसे मिल के बात करके समझाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं उनसे बात करने के लिए, लेकिन समझाना लोगों को आसान नहीं है। हम सब लोग वो समझते हैं। अगर जल्दी हो गया तो बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर 1 कि बैरिकेड बना के उनको अंदर रखे जाए दिन के 12 घंटे। ऑप्शन नंबर 2, जब भी आपके बेल होता है, जब ब्लाइंड लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं तो उनको ये होना है कि हम बेल करके जाएंगे। जब बेल होता है डॉग्स को दूरी एक उधर से थोड़ा दूर में खाना मिलता है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3, the last option we could probably think of are you get an electronic item. This electronic item is available on Amazon. If it is very expensive, I can also arrange somebody to manufacture it for a less price. This is called basically a stop bark या एंटी डॉग रिपेलर बोलते हैं, डॉग रिपेलर बोलते हैं, एंटी बार्किंग बोलते हैं। ये क्या है सर? ये एक रिमोट कंट्रोल का छोटा सा एक चीज है जिससे ऐसा वेव्स निकलता है जो डॉग्स को डराते हैं या इरिटेट करता है। मतलब अल्ट्रासोनिक है डॉग्स, तो डॉग्स को बिकॉज देयर सी इसमें अल्ट्रासोनिक ओवर 20 किलोहर्ट्ज का ये एक रेडिएशन छोड़ता है, साउंड वेव छोड़ता है, जो हमें सुनाई भी नहीं देगा, हमें कुछ फर्क होगा भी नहीं है, लेकिन डॉग्स को इरिटेट होता है। इससे डॉग्स दूर चले जाते हैं। जो आसपास है, जो अगर हमें पता चला कि आसपास हमारे आसपास डॉग्स है या ऐसे जगह में डॉग्स है, तो उसको दबाने से 1 या 2 बार डॉग्स अपने आप उठ के दूर चले जाते हैं। This is the third and the last way that we can send them away in the path we are moving around. क्यों ये मैं लास्ट रखा हूं? क्योंकि एनिमल राइट एक्टिविस्ट हो सकते हैं जो समझते नहीं है, समझना भी चाहते नहीं है, लेकिन डॉग को प्यार करता हूं, आई एम अ डॉग लवर, आई एम अ डॉग लवर बोलते हैं। ठीक है, आप डॉग लव करते हैं, कितने डॉग को आप खाना दे रहे हैं? वो नहीं करते। उनको फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए 4 चित्र चाहिए, लाइक्स चाहिए, शेयर चाहिए, इसलिए डॉग लवर का मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी। तो वो लोग कल आएंगे, बोलेंगे दे इस वजह से डॉग को इरिटेट हो रहा है। हालांकि हाँ, डॉग को हम इरिटेट करना नहीं चाह रहे, इससे तकलीफ नहीं होगा। ऐसा है कि जैसे हम एक ब्लाइंड है, तो हमारे पास जो एक लाठी है उसमें रिंग है, तो जो भी हम रिंग करके जा रहे हैं, सामने वाला आदमी भी बाजू हट के हमें जगह दे रहा है, क्योंकि रिंगिंग साउंड इंसान को समझ में आ रहा है कि उनको जगह देना है। वैसे ये जानवर को समझा देगा कि ये जगह खाली करो, एंड ये बहुत दूर भी नहीं जाएंगे, 10 मीटर ही दूर जाएंगे, आप जाने के बाद वापस आके वहां पे बैठ जाएंगे। तो उनको दिस इज द लास्ट स्टेप वी वुड वांट टू डू इफ द फर्स्ट 2 फेल्स। इस वजह से हम डॉग्स को दूर रख सकते हैं। एक दूसरा क्या है कि these are any sort of an unknown sound। अगर डॉग्स आप जाने के जगह में कहीं पे डॉग्स बहुत झगड़ा कर रहे हैं, अपने आप में झगड़ा कर रहे हैं डॉग्स, तो आपको डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो झगड़े में आपको अटैक हो सकता है। ये सभी है। तो ये सब टाइम में भी दिस इज एन अल्ट्रासोनिक इजी वे दैट विल नॉट डू एनी परमानेंट डैमेज, या इट इज अ टेम्पररी वार्निंग फॉर अ डॉग कि भैया आप दूर चले जाइए, हमारा रास्ता दीजिए। जैसे कि हम हॉर्न करते हैं कार में, व्हीकल्स में, दिस इज अ सिमिलर थिंग। हालांकि आज वो अमेजोन में 1200 के दाम में मिलता है। अगर आप लोग वो यूज कर सकते हैं और आप करना चाहते हैं, उससे किसी को तकलीफ नहीं है। हालांकि डॉग्स दूर जा रहे हैं, 2-4 मिनट छोड़ के वापस आ रहे हैं, वैसे स्थान पे आ गया, देन आई कुड टॉक टू सम मैन्युफैक्चरर्स टू मेक इट इन बल्क। ये सभी जो भी हमारा यूनिवर्सिटी का बच्चे हैं या फिर जो बाहर जाते हैं, उसके बावजूद उनके उनके हमारा ब्लाइंड स्टिक में डाल सकते हैं कि whenever they sense that there is a dog around, that's the best thing they could use। हाँ, now the question would be, सर अगर हमें पता ही नहीं कि वहां पे डॉग है, तो हम इसको यूज करें ना करें? सी देर आर वेज यू कैन स्टार्ट आइडेंटिफाइंग। आपका सेंसेस इतना स्ट्रांग है कि आपको स्मेल से, दूसरी तरीके से पता चल सकता है कि वहां पे आसपास डॉग है कि नहीं। तो अगर आपको पता भी नहीं है और आप चलते जा रहे हैं, तो लोगों से भी पूछ सकते हैं कि आसपास कोई डॉग तो नहीं है। हाँ, थोड़े दूर पे है, 2-3 शो है वहां पे पार्क में, चलिए, तो आप 10 कदम के बाद उसको प्रेस कर सकते हैं। दिस इज एन ईजी वे टू कीप देम अवे। अगर आपको कोई कुत्ता चेस कर रहा है, तो दिस इज एन ईजी वे टू स्टॉप देम चेजिंग एंड कीप देम अवे फ्रॉम यू।
This is what I basically wanted to tell. Now I would want to answer the questions so that आपकी तरफ से जो आएगा आप पूछ सकते हैं please, because then it will be task specific. मुझे जितना समझ में आया था सही गलत whatever I had understood that I would want to talk today is what I have covered, but I would want to give more time for our question and answer sessions so that we can go in particular हर एक का टेलर मेड का कंसर्न के लिए टेलर मेड हम सोल्यूशन बात कर सकते हैं. Yes, Gunjan ma'am. Yes, thank you so much. It was such an enlightening session, such an enriching talk. और जो जितने भी टेक्निक्स की आपने बात की वो बहुत ही हमारे लिए लाभदायी साबित होंगी. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक्ड अबाउट स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, हाउ यू एक्चुअली ट्रेन डॉग्स टू you know behave, right? So and after that we have to ensure our feeding points, and then of course the most important was dog repeller. I'm sure all of us are going to buy. और बाकी चीजें भी है जैसे गाइड डॉग की तो बात सही है, बट स्ट्रे डॉग्स are the problems, and you've already talked so many things about it, and I'm sure audience have a lot of questions. So I'd like to invite audience. The dais is open. People, you can ask questions, so I was here to answer. And those who want to write questions in chat box, they can also write. Yeah, Gunjan, can I go ahead? Please, Mohammed. Yeah, thank you, sir, for such an enriching speech. I think the problem in JNU is much deeper, as I have understood in my duration of JNU. मेरा जो भी समय रहा है JNU में उसके हिसाब से I think the problem is much deeper. Here we are talking about dog issue where we are talking about the campus जहाँ पर dogs की संख्या कुछ हजार में है, if not more than that. That's first thing. Secondly, as you have rightly said कि dogs को relocate करना ये एक गुनाह है. I think it's a crime if I'm not wrong, right? And there are hostels in JNU जहाँ पर already students ने, normal students ने और so called able students ने dogs को पाल रखा है, and since वो वहीं पे उन्होंने अपनी territory बना ली है इसलिए उन्हें वहाँ से निकालना, because the bigger problem for us is to remove take dogs away from the at least residential areas जैसे कि hostels हैं, right? So कई बार वो कॉरिडोर्स में सोए होते हैं, या हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि दे डॉग्स कई बार बाथरूम्स में होते हैं, राइट? एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट. वी कांट बी so conscious all the times, right? So how to overcome this thing? That's first thing. Secondly, जहाँ तक मुझे पता है कि कोई ABC कमिटी होती है, एनिमल वेलफेयर का कमिटी समथिंग, राइट? जब उनसे बात की जाती है हमारे कैंपस में डॉग्स को रिमूव करने की, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस दैट administrators have always suggested us for forum members to हम जिन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस इज कि जब भी ये बारी आती है कि डॉग्स को रिमूव किया जाए कैंपस से बाहर ले जाया जाए, तो ये महसूस किया जाता है कि कई बार संख्या उतनी ही होती है, बिकॉज कैंपस के बाहर ले जाने के बाद कई बार बाहर के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो कैंपस में आ जाते हैं. सो संख्या उतनी ही रहती है, प्रॉब्लम्स वहीं पे रहती है, प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती. एंड देन ऑब्वियसली देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल कि डॉग फीडिंग जोन्स भी जेएनयू में बनाए गए हैं, परंतु उनको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता. स्टूडेंट्स जो हैं हमारे ही भाई दोस्त वगैरह हैं, वो कहीं भी बिस्किट्स वगैरह फीड करते हैं डॉग्स को. एंड these are the very big issues that we do face in the campus. So I once again reiterate my thing that I'm not against the dog rights, but yeah, these are the issues that I think which are much deeper. Thank you. And yes, sir, I would also like to add that even if we try to create feeding zones, the same thing, Mohammed has talked about most of the things, but here there are so many dhabas in JNU if you come here. So near 24/7, they are actually 24/7, and those dogs are huge. If they bite you, I mean, they're so scared that we even don't want to venture out at night. So how do we deal with such things, as in feeding points and all those things become
a futile idea when you talk about JNU. So he's rightly pointed out. How would you, uh, what would you say to all of this? Gunjan ma'am, what Mr. Shaikh also told was true. What we could do here is, जब तक हम बैरिकेड नहीं करते हैं, मतलब हम जितने भी मुंह में बोलते हैं, लोगों को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, समझते हैं तो भी कार्य रूप तक लाते नहीं है. तो फीडिंग जोन्स खुला रखने से डॉग फीड करके वापस चला जाता है उनके टेरिटरी में ही. मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी टू. वी हैड ट्राइड दिस नॉट फॉर द ब्लाइंड, बट वी हैड ट्राइड दिस वन प्लेस इन बेंगलुरु, जहाँ पे क्या था, उनका वो कुछ अपार्टमेंट्स था और एक 4-5 बड़े बड़े 20 माले का अपार्टमेंट्स इकट्ठा एक ही कॉम्पाउंड में थे. और डॉग्स क्या करते थे समर में, वो आके स्विमिंग पूल में जंप कर देते. तो दैट वाज अ कंसर्न. नाउ रिलोकेटिंग, जैसे सर ने बताया, रिलोकेटिंग इज अ क्राइम, किलिंग इज ऑल्सो अ क्राइम, बट वी नीड टू डू समथिंग. सो ये जो हमारा फीडिंग जोन्स है, जितना भी है, 4 है, 5 है, 6 है, उसको एनक्लोजर में बनाने से इट इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट टू मच. हमें यही यूज करना है कि जो यूज्ड ग्रिल्स होते हैं या फिर मेश होते हैं या फिर मेटल का शीट्स होते हैं जो बिल्डिंग के बाहर पड़े रहते हैं अनयूज्ड, उसमें से 10x10 का हमने वहां पर भी वही सजेस्ट किए थे कि उनके एरिया में 4-5 जगह में हमने वो तो छोटा ही एरिया था, अराउंड 30-40 एकर्स का था. तो 4-5 जगहों में फीडिंग जोन्स करने से पहले बैरिकेड कर दिया तो खाना वहीं पे डालता है. तो डॉग्स जो अंदर जाते हैं तो दरवाजे भी ऐसा बनाया जाता है कि वो पुश करके अंदर आराम से जा सकते हैं, अंदर से बाहर नहीं आ सकते. तो अंदर जाते हैं, खाते वहीं पे रहते हैं. और सर डॉग को दिन में प्रॉब्लम, सॉरी सर, प्रॉब्लम ये है कि दिस इज 1000 acre स्पेस कैंपस और एक्टिविटीज 24/7 होता है. लाइक हाउ डू यू, व्हेन डू यू एनक्लोज दोस डॉग्स, हाउ डू वी डिसाइड? क्योंकि लोग रात में भी उतने ही एक्टिव होते हैं जितने दिन में. तो आप कितने से कितने बजे तक डॉग्स को उस क्लोजर में रखोगे, उस कन्फाइन में जी, रखोगे? जहां दिस, तक जहां तक डॉग्स को खाना मिल रहे हैं वहां पे, और ऊपर अगर छत भी है कि उनको बारिश से वो रुक रहा है, तो डॉग्स वो जगह छोड़ के दूर जाएंगे ही नहीं. अभी इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग एक दिन में होने वाला चीज नहीं है. It'll take at least a bare minimum probably 3 months to 3-4 years कि डॉग्स इकट्ठा होके वही जगह में रहना शुरू करेंगे, बिकॉज वहां पे उनको खाना मिल रहा है. इस वजह से मदद क्या होगा, एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से होता है, उन लोगों को डॉग को इकट्ठा पकड़ के उनको स्टेरिलाइज करने में आसान रहता है. बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होता है, क्योंकि अभी 1000 एकड़ का जेएनयू में जब वो बिखर जाता है तो उसको पकड़ना, लेके जाना, एंटी रेबीज देना या उनको बर्थ कंट्रोल का ऑपरेशन करना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है. क्योंकि जब भी गाड़ी आता है वो लोग शातिर है, वो निकल जाते हैं, मिलते नहीं है, और हाउ डू जितने दे भी मिलते हैं. अंडरस्टैंड सर एमसीडी की कार को कैसे पहचान लेते हैं क्या? नहीं, डॉग्स आर सुपर सेंसिटिव. अगर एक डॉग, ब्लाइंड गाइड डॉग को ये पता चलता है कि अगर समझे कल गुंजन मैडम के लिए एक डॉग हम तैयार करके दिए और भगवान करे कि वो जल्दी आ जाए, तो ही विल ओनली टेक यू इन द स्टेयर केस जहाँ पे आपका हाइट मैच होता है, उसका नहीं, आपका हाइट भी मैच होना है. तो अ डॉग इज सो सेंसिटिव दैट दे कैन फाइंड आउट अर्थक्वेक. जो अर्थक्वेक फाइंड हो रहा है डॉग, तो उनको व्हीकल जिसमें कुत्ते को लेके जाता है वो तो बहुत आसानी से पता चलता है. एंड दे विल गेट टू नो एटलीस्ट 3 किलोमीटर इन एडवांस की वो गाड़ी आ रहा है पकड़ जाने के लिए. दे आर सुपर सेंसिटिव. दैट इज द रीजन दे यूज फॉर बॉम्ब डिटेक्शन या ड्रग डिटेक्शन वगैरह वगैरह के लिए. सिमिलरली, तो इतने सारे जब डॉग्स है, वंस वी स्टार्ट गेटिंग देम, 1000 एकड़ में कम से कम हम 10 से शुरू करेंगे. 10 ऐसा जोन्स रहेगा जहाँ पे खाना मिलेगा और दे गेट इनसाइड. तो एक एक बार जब अंदर जाता है, बाहर आना मुश्किल है. तो तभी कितने स्टेरलाइज हुआ है, कितने का मतलब कितना बच्चा नहीं कर पाएगा, कितने का वैक्सीनेशन हुआ है, वो आपको आसान होगा ये पता करने में. बिकॉज फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू कम ऑन अ वीकली विजिट, अभी आएंगे तो भी मिलेगा नहीं, तभी देखेंगे तो मिलेंगे कम से कम. तो मिलने के बाद जिसका भी ऑपरेशन नहीं हुआ, वो करके जाने में आगे बच्चा तो नहीं होगा. एक ये इमीडिएटली आपको वही थर्ड सोल्यूशन ही रहेगा कि आप जहाँ पे भी वॉकिंग कर रहे हैं, आप अपना वो जैसे मैंने बताया. एंड आई पर्सनली फील दैट 1000-1200 रुपीज फॉर दैट ऑब्जेक्ट इज वे टू हाई. मैं टेक्निकल उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन या इंडिया में हम किसी को, मेरे मेरे कॉन्टेक्ट्स में मैं घूम फिर के, और आपके भी जेएनयू में अगर इलेक्ट्रिकल यूनिट है जो बच्चे करके दे सकते हैं, तो आई एम श्योर इट शुडंट कॉस्ट मोर देन 300-400 रुपीज. तो दैट्स एन इवन बेटर थिंग दैट उतना वो प्रेस करके जाएंगे. हर प्रॉब्ली एवरी 30 स्टेप्स ऑफ योर्स यू प्रेस इट वंस. तो उसके आसपास जितने भी है वो रहेंगे, तकलीफ नहीं होगा, अपने आप दूर जाके बैठ जाएंगे.
तो मदद ये होगा कि हम उनके ऊपर स्टेप नहीं कर रहे हैं. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, व्हेनेवर वी सेंस बाथरूम भी जैसे मैंने बताया, so we can make it a routine that every 30 steps we're going to press it once. Yes. हम लोगों में किसी को तकलीफ होगा नहीं, हालांकि डॉग्स जहाँ पे भी है मूव हो जाएंगे. और जैसे सर ने बताया, कॉरिडोर्स हो, टॉयलेट्स हो, तो हम हर 30 सेकंड में जब प्रेस करें, टॉयलेट में होगा तो भी वो मूव आउट हो जाएंगे. हालांकि हाँ, एक्सीडेंट ऐसा हो सकता है कि वो मूव आउट होने के बाद आपके तरफ आ रहे हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है कि साउंड आपके तरफ से आया. लेकिन डॉग्स रिदम अंडरस्टैंड हो जाएगा, बिकॉज जब भी कोई लाठी लेके आ रहा है और वहां लाठी का भी टक टक नॉइस आ रहा है जमीन पे, और अब ये जो उसका 30 टाइम्स टक 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 आने से ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भी आ रहा है, उसको साउंड का वेव जो भी आ रहा है, तो दे देमसेल्फ वुड आइडेंटिफाई एट ए डिस्टेंस की somebody is coming, एंड वो पास आते आते वो वेव्स हमें डिस्टर्ब होगा, तो they themselves will start giving you ways to move away. Yes, sir. It is one not a it is not going to be that is an immediate solution आपके लिए. और आगे जाके यही करके जाना, because dogs they are so well developed कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ना they will get used to it कि वो उनको जाना नहीं है. तभी हमें वो 20 मेगाहर्ट्ज का किलोहर्ट्ज जो है उसको बढ़ाना है. वो करने से बेहतर है तब तक हमें 5 साल का हमें जो मौका मिलता है कि हम वो यूज कर रहे हैं, उसके बीच में वी स्टार्ट एनक्लोजिंग जोन्स वेयर दे आर फेड. एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम भी कर रहे हैं और वैक्सीनेट भी कर रहे हैं कि देखिए, ये सब होने के बावजूद भी 1 या 2 इंसिडेंट हो सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो कुत्ते एंटी रेबीज का इंजेक्शन लिया है, वो तो एक अच्छा चीज है. दूसरा चीज है कि वो और बच्चे तो नहीं डाल रहे, ये दूसरा अच्छा चीज है. तो फॉर इमीडिएट यू कुड यूज द रिमोट्स, बिकॉज इट इज एज बिग एज अ पेंटॉच सेल. एक आपके उंगली जितना ही बड़ा होता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो आपके हर स्टिक में आप लगा सकते हैं, और हर 30 स्टेप्स या 40 स्टेप्स जैसे कि आपको लग रहा है कि ये बेहतर है, यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैट फॉर नाउ. एंड विथ दैट यू विल समटाइम हैव टू मेक एन एनक्लोजर फॉर द डॉग्स, बिकॉज वो 1000 है, 10,000 नहीं बनना है. 1000 से 1000 रहेगा, 500 बनना है, 300 बनना है, कम होते जाना है. बिकॉज अब बाहर का जहाँ पे भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, वहां का डॉग्स भी अंदर आ रहे हैं, वही रहेगा आगे जाके. फिर उनको भी स्टेरलाइज करेंगे उनको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट साइकिल. जैसे कि सूरज उगता है डूबता भी है, वैसे ही हमें उसको ये करना है. बिकॉज पकड़ने के लिए वो लोग आके बोल के जाएंगे कि नहीं मिल रहा है, तो हमें उनका मदद करना है ताकि कल हमें मदद हो जाए. तो मेकिंग स्मॉल 10x10 का एनक्लोजर्स, पॉइंट नंबर 1. खाना उधर ही देना है, यू कैन मेक. हाँ, बाहर बिस्किट भी देते हैं ना, देते हैं, लेकिन वहां अगर बचा कुछ चिकन मटन वैसा का बोन्स मिल रहा है, तो डॉग्स बिस्किट अपने आप खाना कम करेंगे. दूसरा, वील हैव टू मेक एन एजुकेशन कैंपेन एंड सेंड इट टू एवरीबॉडी वाया मेल या पोस्टर्स कि ग्लूकोज बिस्किट हाइपोग्लाइसीमिया करते हैं डॉग्स में, उनका किडनी लिवर्स जल्दी फेल हो जाता है. तो जिनको भी कुत्ते को ऊपर प्यार है, और आप सिगरेट पी रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं और उसके बीच में कुत्ता आ गया, उसको बिस्किट देना है. बिस्किट की जगह आप वो एनक्लोजर्स में जाके जो भी खाना डालने उसके अंदर डालिए, ताकि एक तो बिस्किट नहीं डालेंगे आप, बिकॉज उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, कुत्ते को स्किन का प्रॉब्लम्स होता है, उससे बाल जड़ जाता है, उनको काफी सारा कंसर्न्स होता है. तो वी नीड टू एजुकेट. इट्स नॉट ओनली इन JNU, इट्स फॉर द होल कंट्री. बट देन मैं अकेला था अब तक, अभी आप इतने लोगों का साथ मिला है, तो वी स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल ऑन दैट कि वहीं पे खाना डालिए, तो वहां पे ABC के लिए या फिर दूसरे के लिए मदद होगा. आप जहां जहां खाना डाल रहे हैं, आप तो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आप प्यार करते हैं, तो वो प्यार की वजह से कुत्ता हर जगह घूमता रहेगा. तो एक्सीडेंट में भी काफी सारा कुत्ते को भी दर्द होता है, एक्सीडेंट से कुत्ता मारा जाता है, व्हीकल एक्सीडेंट्स होता है, तो वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं इफ वी एनक्लोज इट. तो हम ये नहीं बोल रहे कि उसको पिंजरे में बंद करें, उनको खाना पिंजरे में मिलेगा, और बाहर आने के लिए देन दे कैन रूटीन कि उसको लेके जाना है, रखना है. देयर आर लॉट ऑफ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्शन के लिए डॉग्स देते हैं, तो अडॉप्शन भी कुछ हो जाएगा, तो वो भी एक दूसरा मदद होगा. तो जाते जाते ऑल द 1000 डॉग्स इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 years कैन बी स्टेरलाइज्ड, तो और बच्चा आना तो कम होगा आगे पीढ़ी के लिए. That's One. very true. Yeah. तो अभी तुरंत आज क्या कर सकते हैं सर, 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट आप ले लेंगे, उससे आप लाइक आई टोल्ड यू, इट इज इजीली अवेलेबल ऑन अमेजोन दिल्ली में. जब तक आपको ये करना है टू सर्च फॉर इट, एंटी बार्किंग डिवाइस, डॉग रिपेलेंट डिवाइस, ऐसे सर्च करने से आपको मिल जाता है. तो दैट इज समथिंग वी कैन स्टार्ट विथ इमीडिएटली, पॉइंट नंबर 1. बिकॉज हमारा अंदर का डर तभी जाएगा जब हमें महसूस होगा कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वो नहीं मिले, आज नहीं मिले, कल नहीं मिले, हफ्ता हुआ, साल हुआ, हमारा रास्ते में नहीं मिल रहा है. बिकॉज जब तक हमें वो डर है, वो डर डॉग को भी फीड होता है. डॉग को एक आराम इंसान एंटी बार्किंग डिवाइस, एंटी बार्किंग डिवाइस, डॉग रिपेलेंट्स. Yes, sir. So
these are such information which we would not have had access to if we were not here. So I'd like executive committee to note down these points, and we can talk to the administration, and we can have further sessions on this. Enclosed to feeding zones, and that's a very good idea. Okay, I'm sure people have more questions. Yes, Varun, you want to ask something? No. Okay, yes, guys. Anyone? Yes, ma'am. Please go ahead. मैम आपने कहा था Please introduce yourself. Introduce कीजिए खुद को. माय नेम इज मधु, मैं भारती कॉलेज से हूँ. प्लीज थोड़ा साइड में आ जाइए, आपके फैन की बहुत आवाज आ रही है मधु. एक सेकेंड मैम. एक्चुअली मैं भारती कॉलेज से हूँ, तो यहाँ पे जो सर ने कहा था कि वो ट्रेनिंग के लिए बोल रहे थे, वो फ्री होगा, तो वो ट्रेनिंग कैसे होगी? वो ट्रेनिंग, अच्छा सर ज्यादा बताएंगे. वैसे अभी वो कैंपस के लिए बोल रहे थे. हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए एक फॉर्म सर्कुलेट कर देंगे. आप रजिस्टर कर लेना और आप जेएनयू में आके ट्रेनिंग ले सकते हो. वैसे सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे. या यस सर. कि मधु मधु कि मधु मैम कौन सा ट्रेनिंग का आप बात कर रहे थे? ब्लाइंड गाइड डॉग्स का कि डॉग्स को एक्सपीरियंस करने का? सर डॉग को एक्सपीरियंस करने का. हाँ जी, तो जैसे गुंजन मैम ने बताया, लेट देयर बी ए सर्कुलेशन. तो आप इकट्ठा इतना लोग एक बार इकट्ठा हो जाएंगे ऐसा दिन बोलने से, अगर मुझे दिल्ली आ सकता हूँ तो वो देखेंगे, नहीं तो मैं दिल्ली में किसी को अरेंज करूंगा हमारा लोगों को कि डॉग ले आके आप लोगों से एक्सपीरियंस करा के जाए. तो कितना लोग होंगे, कब करना है, वो आप गुंजन मैम से ये करके रेडी कर सकते हैं. दिन पहले बता देने से ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए आसान रहेगा. यस सर, लेकिन सर कंफर्म नहीं होगा कि हम जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करेंगे? हम गूगल फॉर्म भेज देंगे मधु सब जगह. आप जिस भी ग्रुप आज में होगा. जितने लोग रजिस्टर हुए थे सबको गुंजन मैम गूगल फॉर्म भेज देंगे. जिन्होंने इतने लोगों अटेंड को तो किया पक्का है, भेज देंगे. हाँ, तो जिन्होंने अटेंड किया आपको आ जाएगा, फिर आप उससे ये कर सकते हैं. फिर दूसरा आप है बाकी कि दोस्तों को भी बता सकते हो. हाँ जी, और गुंजन मैम मेरा ईमेल आईडी भी आपको सर्कुलेट करेंगे. किसी को भी कुत्ते के बारे में कुछ भी जानकारी होना हो, आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या फिर ईमेल टाइप करके भेज सकते हैं. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट विद दैट. ओके सर. थैंक्स मधु. एनीवन एल्स? नो मैम. Yes, guys, come on. Sir, people were so interested to know about all this because, we just read in autobiographies and history. I mean, people who are from US, from England, that they have guide dogs. But how relevant it is, how possible it is, feasible it is to have a guide dog in India. I mean, I'd like to ask this question Ma'am, to the you. biggest challenge we will face in Yeah. India is not the guide dog or training the Yeah. guide dog. वो Yes. मेरा जिम्मेदारी है, मुझे करना है, मैं करूंगा. और मैंने जैसे देखो, बताया, मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे तो वन वे ट्रैफिक भी नहीं होता. And I heard Exactly. an anecdote where there was a blind guy who had a guide dog, and unfortunately the dog crossed the road, and the dog was waiting for the guy to cross. So that may happen in India because of नहीं, infrastructural problems. गाइड डॉग्स आर ऑलवेज हाथ में पकड़ के जाते हैं. तो वो रोड भी क्रॉस गाइड डॉग्स उनके साथ ही कराते हैं. तो मुझे डॉग के पता साथ ही नहीं. उनको जाना पड़ता है. बिकॉज उनका क्या है, हमेशा लीश कॉलर जो हम डॉग्स के लिए डालते हैं, डॉग्स के लिए पट्टी डाला जाता है. जब इंसान कुत्ते को वॉकिंग करते हैं तो उनके गर्दन में पट्टी बांधता है. गर्दन में एक बेल्ट, जैसे हम लोग वेस्ट में डालते हैं पैंट के लिए, वैसे डॉग की गर्दन में पट्टी डाल के एक रस्सी से पकड़ के घुमाते हैं वो लोग. तो लेकिन गाइड डॉग्स में क्या होता है, उनके लिए एक मजबूत स्टिक जैसा होता है. उनके छाती से हमारा हाथ तक एक स्टिक रहता है, तो वो उसको हम पकड़ते हैं और कुत्ता हमें हर जगह घुमाता है. ब्लाइंड गाइड डॉग्स हमारा इसमें क्या है, अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ सिक्योर जोन फॉर आर ब्लाइंड स्टूडेंट्स हो, ब्लाइंड जोन्स हो, वहीं पे हम इसको आगे ले जा सकते हैं. क्योंकि ये ब्लाइंड डॉग्स को, जैसे आज का मुद्दा यही था कि स्ट्रे डॉग्स का मेनेस, मतलब Right. जो हमारा स्ट्रीट डॉग्स का मेनेस, तो वो ब्लाइंड गाइड डॉग को भी अटैक करना शुरू कर देगा. तो ये गाइड डॉग आपको वॉकिंग लेके जा रहा है कि उनसे झगड़ा करे, वो मुश्किल हो जाता है. तो इंडिया में अगर ब्लाइंड इंस्टीट्यूशंस के लिए एक
compounded property है जहाँ पे only it could be a college, it could be a university for blind where it is a compounded zone, then that is where we can start a pilot project कि डॉग को महसूस करे, लेके जाए, घुमाए फिराए, ब्लाइंड गाइड डॉग्स करे। जब तक ये स्ट्रीट डॉग मैंने सॉल्व नहीं हो जाता है, ब्लाइंड गाइड डॉग जितने भी बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग किया जाता है उसको बाहर लेके जाना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि वो डॉग जो हमने ट्रेन किया उसको भी डर होता है, क्योंकि ये झुंड में शिकार करते हैं। तो अचानक से 10 डॉग आ गया तो वो ब्लाइंड पर्सन को गिरा के चला जाता है। हालांकि अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज में स्ट्रीट डॉग्स है ही नहीं, तो उनके लिए ब्लाइंड गाइड डॉग्स आसान होता है। आप लोगों को महसूस भी हुआ होगा मेट्रो स्टेशन में एक लाइन बनता है जिसमें टेल्स को ऊपर एक राउंड की एक ये रहता है जहाँ पे ब्लाइंड, इट वाज बेसिकली, आप पता नहीं आप महसूस किए होंगे नहीं, हर मेट्रो स्टेशन में देयर इज वन प्लेस कोने में रहता है जहाँ पे टेल्स का अलग तरीके का टेल्स बनाया जाता है, जो हर स्टॉप में स्क्वायर होता है या फिर उसको रेक्टेंगल में चलता रहता है। दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड मेड ओनली फॉर मेट्रो स्टेशन फॉर द ब्लाइंड गाइड डॉग्स। तो गाइड डॉग्स को एक ऐसे वो उसके ऊपर ही चलता है और ट्रेन के अंदर ब्लाइंड पर्सन को लेके जाता है, उसके लिए बनाया गया था। हालांकि इंडिया में भी हर मेट्रो स्टेशन में वो है, लेकिन ब्लाइंड गाइड डॉग्स ही नहीं है। तो क्लोज्ड एनक्लोजर में जहाँ पे भी रेसिडेंशियल स्कूल्स हो, रेसिडेंशियल कॉलेजेस हो या फिर कॉम्पाउंडेड कॉलेजेस है गाइड डॉग्स के लिए, जो शायद 1, 2, 3, 4, 10 एकड़ का है, वहां पे दूसरे डॉग्स को बाहर निकाल के वहां पे हम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। आगे करने के लिए मैं तैयार हूँ, करने का ज्ञान मुझ में है, जगह और मौका मिलने का तलाश है, वो करेंगे तभी। तो जगह कैसे ढूंढेंगे? You will help us. I mean, we can have some sessions on the campus, but is it enough for us to नहीं, practice? JNU का कैंपस में हम ओनली एक्सपीरियंस करा सकते हैं। अच्छा, ट्रेन डॉग आएगा, आप उनको थोड़ा वॉकिंग करेंगे, लेकिन ब्लाइंड गाइड डॉग जो है ना, वो ट्रेनिंग ब्लाइंड पर्सन और डॉग के बीच में तकरीबन 18 महीने तक होना है। वो डॉग को आपके नसों से बहुत ये होना है, पकड़ होना है। ही शुड नो कि आपको टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट बिना बोले भी आपको टॉयलेट के दरवाजे तक ही लेके जाना है। उतना उसको आपको समझना पड़ता है, डॉग को समझना पड़ता है। तो उसमें जैसे मैंने बताया, अगर किसी का घर है और घर के अंदर उनको घूमने के लिए डॉग तैयार करना है, या फिर एक ब्लाइंड का स्कूल है जहाँ पे भी है, तो वो स्कूल, सर हमारा स्कूल है 30 बच्चे 40 बच्चे हैं और स्कूल के अंदर कोई डॉग अलाउड ही नहीं है, हम गेट बंद करके रखते हैं। छोटा स्कूल है, एक आधा एकड़ का, 1 एकड़ का है। ऐसा होने से वहां पे हम प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं टू प्रूव, एंड एक बार ही वो हो जाए तब भी बाहर लेके जाना, जैसे मैंने बताया हमारा देश में बिकॉज इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स है, तो बाहर पब्लिक में उसको लेके घूमना नामुमकिन के बराबरी होता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जैसे मैंने बताया, तो वो डॉग रिपेलर हो या बार्क रिपेलर, बार्क स्टॉपर, वो सभी हमारे साथ अगर गाइड डॉग है तो वो डॉग को भी बहुत तकलीफ पहुंचा देगा, वो भी हमें छोड़ के भाग जाएगा। yes. तो दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी ओनली फॉर पीपल हु डू नॉट ओन डॉग्स, जिनके पास कुत्ता नहीं है, जिनको कुत्ते के साथ जाना नहीं है, वो ये इस्तेमाल करेंगे। बाकी टाइम तो उसको प्रेस करने से ही वाइब्रेशन निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। दैट्स अनदर थिंग। एक्सपीरियंस आपका दिल्ली के लिए मैं जितना जल्दी हो सके आप मुझे बताइए, मैं वहाँ पे डेट कम, इवन इफ यू हैव 5 पीपल, 5 लोग इकट्ठा हो जाएगा तो भी मैं एक एक्सपीरियंस अरेंज कर दूंगा, वो आके आपको एक्सपीरियंस करा के जाएंगे। दिल्ली में हमारा दोस्त है, डॉग्स भी है जो ट्रेंड है, वो हो जाएगा वहां के लिए। उसके बाद गाइड डॉग्स का जो है, इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रोजेक्ट। उसके लिए जगह भी हमें ऐसा चाहिए जहाँ पे ब्लाइंड बच्चे रहते हैं 24 घंटे, 1 साल 2 साल। तो उनके साथ पहले डॉग को महसूस होना है कि वो कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, डॉग को समझना है। बाद में डॉग को समझाया जाएगा कि कहाँ कहाँ लेके जाना है, क्या बोलने से क्या, मतलब टॉयलेट बोलने से कहाँ जाना है, कितने कदम जाना है, सीढ़ी कितना जल्दी उतरना है, कितना जल्दी चढ़ना है, वो सब डॉग को भी काफी ट्रेनिंग दिया जाना है। वो आगे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। फिलहाल के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप सबको ये पता चला कि ऐसा कर सकते हैं और करने के लिए इंसान तैयार है। तो हमेशा आप अपना कान खुला रहेंगे कि कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक जगह में जहाँ पे भी हम कर सकते हैं, तो आप बताएंगे, उसका प्रोजेक्ट आगे लेंगे। फिलहाल अभी के लिए ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस कर देंगे सबको, डॉग्स का वो मैं अरेंज कर दूंगा। दूसरा, रिपेलर आप 1-2 बार ही इस्तेमाल करके हमें बता सकते हैं कि कितना वो फायदेमंद रहा, तो बाकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी से बात करके कम दाम में हम कितने ज्यादा करा सकते हैं, बना सकते हैं, जो हेल्प होगा उसको हम देख सकते हैं। Yes, sir. Can I ask Sure, something? sure. Please go ahead. Yeah. So one of my friend, वो उनका नेटवर्क इशू है, तो
वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे, बट ये सवाल है कि विजुअली इम्पेयर्ड को तो डर होता ही होता है, बट नॉर्मल पीपल को भी काफी फियर होता है डॉग से। और वो जो है कई बार क्या होता है कि कभी भी अटैक कर देते हैं, खास के स्ट्रीट डॉग तो पीछे से आगे भी कर देते हैं और कभी पता भी नहीं चलता है। सो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तो आपने जो रेडिशन जो होता है वो आपने बताया करके, लेकिन अगर कोई पीछे से आ जाता है तो उसके लिए क्या हो सकता है कुछ आप मतलब, क्योंकि फेयर तो सिर्फ वीआई के मन में नहीं होता है, सभी के मन में होता है एज पर माई। एब्सोल्युटली, आपने जो बोला बहुत सही बोला। और डॉग ना ज्यादातर, देखिए ये अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडे, वो वाला सवाल हो जाता है। फॉर पीपल हु आर नॉट वीआई, जिनको दिखता है, उनको पहले से डर दिमाग में बिठाया जाता है। डर 3 तरीके से होता है, डॉग्स का हो किसी का भी हो। वन इज कॉपीड फियर, वन इज काउंसल्ड फियर, वन इज एक्सपीरियंस्ड फियर। मतलब एक तो है कॉपीड फियर। कॉपीड फियर क्या होता है कि आपका टीचर बोलता है बच्चे आप लोग बाहर जा रहे हो, आप विजुअली इंपेयर्ड हो तो होशियार रहो, वहां पे डॉग्स है, दैट इज कॉपीड, क्योंकि उनको डर है। और जिनका विजुअल अच्छा है, विजन अच्छा है, उनको मम्मी पापा बोलते हैं बच्चे को गोद में उठा के खाना खा ले नहीं तो डॉगी आ जाएगा। तो वो बचपन से ना उनको डर कॉपी हो जाता है पेरेंट्स से। डर जिनको है, डॉग, हालांकि वहां पे 10 लोग जा रहे थे, डॉग एक ही को काटा, 10 लोगों को काटता है तो वो पागल कुत्ता है। तो डॉग उसी को काटता है जिसको डर है। तो दे हैव टू कम आउट ऑफ द फियर, दे हैव टू एक्सपीरियंस। आज भी मैं एक्सपीरियंस का इसलिए बात किया क्योंकि आपको जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाता है डॉग कैसा है क्या है, तो डर रहता है। तो जिनको डर है उनको पहले डर से बाहर आना है, तभी उनका अटैक कम होता है। बिकॉज डॉग्स को भी ना 4 लोग जा रहे हैं, जो एक आदमी डर डर के जा रहे हैं ना उसी को काटेगा, क्योंकि कुत्ते को आदमी से ज्यादा डर होता है कि वो इंसान कुछ कर देगा डर के वजह से। उनको ये समझ में नहीं आता कि वो मेरे से डर रहा है। काफी सारा गाय सोचेंगे, गाय विच इज अ काउ, दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, तब भी जो गाय के साथ पला बड़ा होता है वो तो गाय को आसानी से जाके छू लेता है। जिनको गाय जिंदगी में कभी छुआ नहीं है, वो पास जाने से गाय लात मार देता है या सींग से मार देता है, बिकॉज वो इंसान को डर है। तो नॉर्मली डॉग्स का जितने भी ज्यादातर अटैक्स होता है एक्सीडेंटली, जैसे आपने बताया आप पाव रख दिया, वो एक अलग चीज है। अपने आप जा रहा है, कुत्ता खुद आके काटा, 1 2 3 आदमी को काटेगा तो वो कुत्ते को प्रॉब्लम है, देन दैट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द म्युनिसिपल कि वो कुत्ते को जांच कर दिया जाए, या फिर उसको, क्योंकि डॉग्स को किल करना, इंजेक्ट करके किल करना कानूनी तौर पे इट इज अलाउड, इट इज नॉट रॉन्ग टू यूथनाइज अ डॉग फॉर मेडिकल हिस्ट्री या बिहेवियरल हिस्ट्री। तो वो अगर कुत्ता जानबूझ के जिन जिन को चाहिए उनको जाके काट रहे वो एरिया में, तो वो कंप्लेन करना पड़ता है, उसको यूथनाइज कर सकते हैं वो लोग, दैट इज अलाउड इन द इंडियन गवर्नमेंट। अगर वो डर के वजह से काट रहा है किसी को, देन द पर्सन हैज टू कम आउट ऑफ फियर। आप लोगों को इसलिए मैंने वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जो नॉर्मल इंसान को नहीं बताता हूं, क्योंकि नॉर्मल इंसान ना खेलना शुरू कर देते हैं। वो देखेगा, कुत्ते को देखेगा, प्रेस करेगा, कुत्ता भाग गया, फिर पीछे जाके फिर प्रेस करेगा, कुत्ते को डराएगा, वो खेल बन जाता है, वो उनके लिए नहीं है। एनी इंस्ट्रूमेंट गुड और बैड कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज। बंदूक अपने अपने इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए, दूसरे को मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे ही हर इंस्ट्रूमेंट है। मोबाइल भी अगर अच्छे के लिए यूज किया तो ज्ञान भी मिल सकता है, बुरा के लिए यूज किया तो कान भी फट सकता है गाना सुन सुन के, ऐसा ही है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ओनली फॉर वीआई में बताया, ताकि वो क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पे है। तो जैसे रिदम बना के हर 10 कदम, हर 20 कदम पे 4 इंस्ट्रूमेंट आप यूज करके फीडबैक दीजिए, उससे अच्छापन हो रहा है तो हर 4 लोग 1000 रुपए देके खरीदने की नौबत नहीं आएगा। आई विल सी द चीपेस्ट वी कैन मैन्युफैक्चर इट फॉर, स्पेशली फॉर द वीआई पीपल, दैट इज वन। और जिनका विजुअली इंपेयर्ड नहीं है उनको होशियार रहना है, जाने की जगह में कुछ कुछ जगह पे ही डॉग्स अटैक होता है, हर जगह पे होना मुश्किल है। तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल वन इन आइडेंटिफाइंग द प्लेसेस, बिकॉज उनके अगर वो डरे हुए हैं और डर मिट नहीं पा रहा है तो उनको ऐसे रास्ते पे ही नहीं जाना है जहाँ पे ज्यादातर कुत्ते खुले हैं, बिकॉज दे कैन आइडेंटिफाई द रूट्स दे आर गोइंग। जो आपके लिए मुश्किल होता है उनके लिए आसान होता है कि ये चुना जाएगा कि यहाँ पे डॉग चेस होता है तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, सिंपल। यहाँ पे डॉग्स है तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना डर कम कर नहीं पा रहा हूं। I also spoke about copied fear. Another fear is counseled fear. Counseled fear भी ये होता है कि कुत्ता है, कुत्ता काटेगा, कुत्ता है, कुत्ता काटेगा।
तो दैट इज पीपल काउंसिल कर करके लोगों में डर आता है। तीसरा डर है जो मैंने बताया, दैट इज एक्सपीरियंस फियर। आप में से किसी को जाने ना अनजाने में किसी कुत्ते के ऊपर पाव रख दिया, काट दिया, तो आपको दर्द महसूस हुआ, एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए आप डर रहे हैं। एक तो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस डर उनका है। दूसरे को वो जाके 4 लोगों को बताया कि भैया मुझे कुत्ता काट दिया, इतना खून है, तो मुझे दर्द हुआ, इतने दिन दर्द हुआ, पेन किलर लेना पड़ा, अस्पताल जाना पड़ा, लोगों ने बोला भयंकर डॉग था। दैट इज अगेन काउंसिल्ड फियर एंड कॉपीड फियर की एक दूसरे से हम जब कॉपी करते हैं, तो इट इज अ बिग इंफॉर्मेशन दैट एवरीबडी इन आवर कंट्री शुड अंडरस्टैंड, स्पेशली माँ बाप। बच्चों को कुत्ते से डराना नहीं है। वो क्या होता है, बच्चे को कुत्ते से डराते हैं, बच्चे बढ़ते बढ़ते कुत्ते से पत्थर मारते हैं। एक बच्चे ने पत्थर मारा, वो कुत्ता जाके दूसरा और कोई किसी को काट दिया, और उसी को काटते हैं जो अवेयर नहीं है। तो एक विजुअल इंपेयर्ड को कुत्ता अपने आप जाके काट देता है, क्योंकि जो दिखता था उसको, वो बच्चे को उसके माँ बाप ने सिखाया कि कुत्ते से दूर दूर, कुत्ता काटेगा, खाना नहीं खाओगे, होमवर्क नहीं करेगा तो कुत्ता आके काटेगा। ये सब गलत चीजें हैं। तो दिस इज व्हाट हैज टू बी काउंसिल फ्रॉम द पेरेंट साइड की जिनको विजुअल इंपेयर्ड हो ना हो, उनको फियर से दूर रखना है, क्योंकि जितना हम फियर करते हैं डॉग को भी उतना ही फियर होता है, और डॉग आके काट देते हैं, हम उसको भगा के काटना भी नहीं होता है। यस सर, दैट्स ट्रू। और ये पूरा लेक्चर जो था, इसमें मैंने तो एटलीस्ट बहुत सारी नई चीजें सीखी। फॉर इंस्टेंस, वी नाउ नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ fear which are so deeply entrenched in our, you know, society that it's difficult to come out of it. And it's high time that we, as coming generation and the generation which will be following, they should know as to how to cope with all these things. So now we have Ram Singh with raised hand. Yes, Ram Singh. Gunjan, before that, may I Yes, yes, Mohammed. go ahead? Yeah, actually, I'm sorry if I'm taking too much of time, but No, not at Amrita, all. this is especially a question from my own side that, first of all, please let me know how to overcome that experienced way, because मुझे एक बार dog bite हुआ है, and now और बहुत दर्द हुआ था भाई साहब, बहुत दर्द हुआ था. So I'm really मुझे भी हुआ था dog scared bite. of that dog bite. So how to overcome that sort of fear? That's first thing. Secondly, I just want to narrate a very unique story which I have experienced in the campus, and this is away from the visual impairment. So there was a person with orthopedic disability. I still I don't want to take the name of that person. It was a boy, और because of the walking style, because of his walking style, जिस तरीके से वो चलता था, that used to attract वो attract तो I think is a wrong word, लेकिन वो irritate करता था dogs को, campus के dogs को, and it often used to happen that वो जब भी library की तरफ या कहीं भी जाता था, because of his walking style, dogs used to chase that person, और उसको 2-3 बार I think dog bite हुआ है. So I just want to take it to the deeper discussion. ये जो rights, human rights versus animal rights वाला entire discourse है, उसमें don't you think that we need to find a way out, जहाँ पर persons with disabilities के rights को भी ensure किया जाए, जो है especially within the limited camp, especially in the campuses or in the premises where people are, where we know that there are people with disabilities. Thank you. सर आप एब्सोल्युटली यू आर वेरी राइट. दिस हैज टू बी, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जहां पे भी मुझे मौका मिलने का तलाश में रहूंगा, मौका मिलने से बात करूंगा कि देयर हैज टू बी मोर स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एनिमल्स, स्पेशली वेयर वी हैव पीपल विथ डिसेबिलिटीज. आई वुडंट कॉल इट डिसेबिलिटी बिकॉज मेरे खुद के पिताजी इज अ पोलियो पर्सन, उनका भी चलने का ढंग बहुत अलग है बचपन से लेके, बिकॉज ही गॉट पोलियो व्हेन ही वाज अ ईयर ओल्ड. एंड मैं देखा हूँ जहाँ पे मैं जा रहा था कुत्ते आराम थे, उसके पीछे मेरे पिताजी आ रहे थे तो कुत्ते भौंकते थे. हालांकि ही वाज स्ट्रांग इनफ, घर में एक कुत्ता पाला था तो ही यूज्ड टू स्टैंड एंड शाउट, एक ही टांग पे खड़े होके भी वो he used to show the fear, show the strength he had in him to the dogs की उसको shoo away कर सकते थे वो. हालांकि इसलिए हो पाया. Your second question, how do I come out of the fear? Because he owned a dog. So experiencing a dog, the more you experience the love of a dog, the lesser you, the more you decrease the fear. Because जैसे कि अभी अंधेरा है उसको उजाला, ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाता है, कलर, द मोर. और इफ देयर इज पिन ड्रॉप साइलेंस, हाउ डू यू ब्रिंग इट इनटू नॉइज? बाय स्पीकिंग आउट लाउड.
if there is a lot of noise, how do you reduce? By stop talking. Though they both are the other way around. तो फियर को आपको काबू में करने के लिए आपको एक्सपीरियंस ही बहुत करना है. डॉग्स जो नहीं काटते हैं, जो आराम है, उन डॉग्स के साथ आप जितना टाइम बिता सकते हैं किसी और के साथ में, मतलब there should be somebody who is monitoring the dog and you as well, normally to start with, and it should be normally a well trained dog, कि उनका से आप गलती से उसका आंख में या कान में हाथ डाल दिए तो भी घूम के काटना नहीं है. These are dogs who are well trained to be therapy dogs, which I spoke about this experience. जितने ज्यादा आप वैसे डॉग्स के साथ एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको डर कम होता जाएगा, because your डर is taken away by प्यार or a happy experience. Thank you so much, Mohammed, Absolutely. for Thank this you. wonderful question, and sir, for your patient answer. Now, Ram Singh, please. Thank you, Gunjan Didi and everyone for giving me an opportunity to speak here. So what I figured out with this discussion, that however we are engaging with the administration on various forum and various spaces, we have raised and mentioned all those points which you have talked about here. उनको हमने ये भी बोला है कि इट्स नॉट अबाउट आर फियर, लेट्स से ठीक है हमारा साइकिक फियर अपनी जगह, बट स्टिल आप लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स को भी नुकसान होता है, और फीडिंग जोन्स क्रिएट करने को और तमाम तरह की चीज़ों को लेके वी हैव बीन विद द एडमिनिस्ट्रेशन विद इंटेंस एंगेजमेंट एंड डिस्कशंस. तो जो मैं समझ पाया वो ये ही है कि एक लिमिटेड वे में एक सेंसिटाइजेशन का जिसको ज़रूरत है, जिनसे बात होनी चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो चीज़ों को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसिटाइज नहीं है. तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि इवन अगर हम कोई मैकेनिज्म इस्टेब्लिश भी करना चाहेंगे तो वो शायद उतना बेहतर तरीके से हम ला नहीं पाएंगे, पहली बात. दूसरी बात ये कि बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड, ऑफ कोर्स फाइन कि हमारे जो इश्यूज को लेके हम तो सेंसिटाइज हो रहे हैं, बट द स्टेक होल्डर्स आर नॉट हियर. तो उनको कैसे सेंसिटाइज किया जाए, क्योंकि इसको मैंने 2-3 तरीके से समझा है, जैसा कि मैं बोल रहा था कि विद द एनिमल राइट्स एज वेल एज आर राइट्स और द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल वेज. लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट एनिमल लवर्स हैं उनको ये बात हम अब आज तक भी कन्वे नहीं कर पाते, क्योंकि वो शायद ना ही तो मॉरल, ना ही एथिकल, और ना ही वो राइट बेस्ड डिस्कोर्स से इस चीज़ को समझ पाते हैं. तो सारी चीज़ें मुझे लगता है उसके बाद ही इम्प्लीमेंट की जा सकती, क्योंकि एक बार आई रिमेंबर once we were speaking with the administration and we even told them that why don't you give us guide dogs to and you can also create a inclusive space for all of us and we can also keep dogs since we used to keep dogs at home as well. पर वो नहीं काटते हैं. तो और फूड जोन वगैरह को लेके तो हमने ऑलरेडी उनसे बात किया है. आई मीन वी हैड अ प्रोटेस्ट आल्सो इन 2016. तो यूनिवर्सिटी स्पेसेस में इंडिया में, स्पेशली इन दिल्ली, तो मेरा ये एनालिसिस है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे इंगेज किया जाए. बिफोर यू स्पीक, वन मोर पॉइंट जो मेरे को समझ में आया कि आपकी हेल्प से हम एक प्रोजेक्ट तैयार करके एटलीस्ट वी कैन थिंक ऑफ फाइलिंग अ PIL कि एनिमल्स को ये लोग प्यार नहीं करते बल्कि हार्म पहुंचा रहे हैं. किस तरह से, जैसे यू टॉक्ड अबाउट अ बिस्किट थिंग, ऐसे ही हम कुछ चीज फिगर आउट करके हम एनिमल के उसमें एक तो अपना सेफ्टी भी कर सकते हैं और दूसरा एनिमल को भी सेफ स्पेसेस दिलाने के लिए एक कन्विंसिंग वे अपना सकते हैं. क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें पॉइंट आउट करना या वैसे पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल होगा, सिंस द पीपल आर नॉट इनफ सेंसिटिव वेयर. और दूसरा आप डिवाइसेस जो बता रहे थे उसका प्राइस भी बता देंगे तो दैट वुड बी ग्रेट. थैंक यू एंड सॉरी फॉर द टू मच क्वेश्चंस. नहीं, राम सिंह जी, आपने जो भी बताया बहुत अच्छी तरीके से बताया, उसमें प्रश्न भी था, जवाब भी था. तो एक आपका क्वेश्चन था कि कैसे उनको एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया जाएगा इसके ऊपर, तो उसमें आपने सोशल मीडिया का बात बताया. तो सोशल मीडिया में द गुड थिंग इज, अभी आप कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ये कौन होता है, राम सिंह ने बोल दिया तो कौन सुनेगा, ये सब आएगा, बिकॉज उनके लिए ना ज्यादातर के लोग अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, there is something called Jago Grahak Jago on one particular thing that is for any service related complaints. तो वहां पे आप ऑनलाइन में है, वहां पे फिलहाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, जैसे कि ये है. तो हम आपके इंस्टीट्यूशन के तरफ से बीइंग स्पेशल पीपल, तो स्पेशलिस्ट के लिए हमें कुछ ऐसा सुविधाएं चाहिए जहाँ पे एनक्लोज्ड एरिया हो हमारे लिए,
जहाँ पे हम या डॉग पाल सकते हैं या ये कर सकते हैं। हर जगह आप मुझे हैशटैग कर सकते हैं डॉग गुरु अमृत करके, या खाली डॉग गुरु भी कर सकते हैं। इसलिए ताकि जिनको भी अगर उसमें से एक बंदा पढ़ के ये सोचेगा कि कौन करेगा, कैसे होगा, बोलिए, तो आने के लिए, बोलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और उसके बाद करके दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। ब्लाइंड गाइड डॉग्स हो या दूसरे जो भी आपने पब्लिक इंटरेस्ट में बताया, दोनों करने के लिए आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। बट वो जागो ग्राहक जागो इज सम फोरम विच आई हैव नोन वेयर इट डायरेक्टली गेट्स टू द पीएमओ ऑफिस। तो अगर आपके इसमें इतने लोग हैं जिनको तकलीफ हो रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? And when I come into the picture, I can answer the extreme animal lovers stating that आप लव तो कर रहे हैं लेकिन आपके प्यार से जानवर को तकलीफ हो रहा है। तो बिकॉज मेरा सर्टिफिकेशन है, मैं बाहर देश में पढ़ के आया हूँ और ऐसे इंडिया का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री डॉग स्क्वाड में एडवाइस भी दे रहा हूँ, लेक्चर्स भी दे रहा हूँ। तो मेरा बात में थोड़ा वजन भी रहेगा कि वो लोगों को मानना पड़ेगा। हालांकि मनाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आई एम देयर विथ यू. You can use the social media to target people and tell them that this is what is required. At least in JNU पूरा 1000 एकड़ का नहीं है, तो हमारे लिए एक छोटा जगह बना के दीजिए जहाँ पे डॉग्स कम रहेंगे, ताकि हमारा जो भी चैलेंज पीपल है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो या फिर दूसरे लोग हो, उनके लिए हम कैसा एक तरीका या जगह बना सकते हैं जहाँ पे वी कैन स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट कि हम जानवर को दूर नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, पीट नहीं रहे हैं, उनके साथ को एग्जिस्टेंस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो आप एनिमल एक्टिविस्ट को करना है वो हम कर रहे हैं। हालांकि हमें अपना अपना डर ही काफी है, अपना दर्द ही काफी है, अपना चैलेंजेस काफी है, उसके बावजूद वी आर डूइंग समथिंग कि हम कुल मिलके को एग्जिस्टेंस प्यार भर के कर सकते हैं। तो सपोर्ट आप मांग सकते हैं, वहां से कुछ भी सपोर्ट आएगा तो आई एम ऑलवेज देयर टू बैक इट अप विथ वॉट एवर बेस्ट आई कैन। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट का 1200 1100 का अमेजोन का प्राइस है, लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप लोग बाकी भारी प्रमाण में उसको लिया जाएगा। एक चार लीजिए, ट्राई कीजिए, ऑलवेज गेट बैक टू मी ओवर एन ईमेल कि हाँ इट इज यूजफुल, find people to do more for a cheaper price. We can get it manufactured in India alone and then we can distribute it to wherever it has to be done by a manufacturer. मैं खुद मैन्युफैक्चरर से बात कर सकता हूँ कि बिना प्रॉफिट का बना के दीजिए या फिर बहुत लीन प्रॉफिट रखे, 10 रुपए 15 रुपए प्रॉफिट में दीजिए, क्योंकि दिस इज, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करने से, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखने से एक बच्चे को भी कुत्ता काट देगा ना, तो कुत्ते को भी बदनाम है, बच्चे को भी दर्द है। तो वील सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन फ्रॉम माय साइड। Yes, yes. Thank you so much, sir. So we have Manish and followed by Manish. Please, Naveen, be ready with your questions. Guys, you're requested to be precise. I understand that this Gunjan ji, session is really interesting. just Please. just Okay. one line to add with it. Yeah. Just suggestions for our forum only. Sure. First of all, I request our committee, honorable committee, to engage with the administration, with Amrit sir, to make them more clear about this, or also with various student organizations including JNUSU, उनको भी engage करना मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि इवन यहाँ पे जितना मैनिफेस्टोज और सारी चीज़ें होती है उसमें भी लोग ये इश्यूज को इसलिए टेक आउट नहीं करते कि उनको लगता है कि शायद उनके वोट बैंक में कुछ कमी आएगा। तो ये सेंसिटाइजिंग का जो पूरा मैटर है, आई थिंक दिस मस्ट बी रेज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज स्टूडेंट कम्युनिटी, so that we can come out with a concrete picture to how to save animal as well as how to avoid our psychic fear while walking. Thank you. Exactly. We will have this in one of our GBM where we can discuss this Ma'am? agenda at length. We have Manish who has a question. I'll take your question later, Gopal. कुछ बोलना है क्या? Ma'am, Manish and then last I question, know. Naveen. Naveen, yeah. Yeah. Yes, Manish, and please be precise. Your question, please. Manish, आप हो? मनीष कुमार है लेकिन वो म्यूट पे आप है। म्यूट, खुद को अनम्यूट कीजिए मनीष. We can't do that. ओके, जब तक मनीष आप लिख figures out a सकते way- हो मनीष. You can write your question in chat box if you're not able to unmute हाँ, yourself. Naveen, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए. तब तक हम नवीन से बात कर लेंगे। Yes. हेलो एवरीवन। एक्चुअली जैसे आप ये कह रहे थे ना, मेरा एक सजेशन है एक्चुअली। क्वेश्चन तो मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन एंड उसका आंसर खुद, सारे क्वेश्चन और आंसर जो भी पॉसिबिलिटी थी वो सारे आपने दिया है खुद ही। तो मतलब ये जो आप JNU को मतलब एक
हॉस्टल वाइज भी तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें किया जा सकता है कुछ, कि हॉस्टल वाइज जो आप 1000 एकड़ जेएनयू की जैसे पूरी बात कर रहे हैं, तो हॉस्टल वाइज अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद एक हॉस्टल से स्टार्ट होगा तो फिर दूसरे हॉस्टल एंड अदरवाइज जो लगभग जितने हॉस्टल्स हैं, फिर अपने आप दिखेगा कि ये मतलब जो डॉग लवर्स भी हैं, तो उनको लगेगा कि नहीं, जो मतलब डॉग्स हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही नुकसान नहीं, उनको भी मतलब राहत रहेगी कि चलो ठीक है, जैसे उनकी हम एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है हमारी, उनको भी वो समझ पाएँगे और वो अपनी भी प्रॉब्लम्स को मतलब उनको लगेगा 100% नवीन, अगर एक भी हॉस्टल हम कन्विंस कर सकते हैं जिसके पीछे में जो वेस्ट सामान है उससे एक एनक्लोजर बना के डॉग्स को फीड वही दिया जाएगा, जिनको प्यार करना है पालना है वही करेंगे, उनके आसपास ही रहेंगे, वो उनका टेरिटरी से कुत्ते को भी बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, उनको साफ सुथरा जगह भी दे रहे हैं, शेल्टर भी दे रहे हैं, ताकि कुत्ते को खुद शेल्टर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, और वो रहने से जैसे उनका हैपी भी रहेगा। वैक्सीनेशन और एबीसी प्रोग्राम भी हो जाएगा. Then that will be an ideal and a model for the whole JNU thing. जी, Yes, जी। very true. Valid point. So, मैम मोना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नहीं ले पाएंगे। हाँ ठीक है, हम नहीं लेंगे क्वेश्चन, लेकिन एक पहले मनीष की क्वेश्चन थी. वी डोंट हैव एनीथिंग टिल नाउ. यस मोना, प्लीज गो अहेड. आप मोना, म्यूट में है. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मोना, जैसे बाकी बच्चों ने लिखा था. इट्स ऑल राइट. आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. सर ने इतने डिटेल में बात की है अपने लेक्चर में, और स्पेशली जो डिस्कशन सेशन था, Q&A सेशन में सर ने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है. सो आई थिंक वी आर जो भी देयर, है जो वी भी आर है, एट we can always make a list of all your questions, Yes, mail sir. it to us, and we'll get back to you with the answers. Yes, so those students who have issues, they can mail to our current EC, and we can have a list of all the questions which can be mailed to sir. And of course, sir is always there for us. Thank you so much for this assurance And and being there with और us. गुंजन मैम, इसको आगे लेके जाते हुए अगर Yes, sir. आपको हर 15 दिन में एक बार एक सेशन रखना है टू सी Yes, हाउ इट sir. इज गोइंग अहेड एंड हेल्पिंग मोर पीपल, इफ इट वाज यूजफुल, आई एम मोर देन अवेलेबल फॉर Oh, यू. that's so kind of फॉर you. JNU VH के लिए आई एम ऑलवेज देयर. That's so great, sir. We will also expand it to DU because I work in DU as well, and I'm a student here. So we'll expand it further, and we'll see, because it's a threat not only in JNU, as Ram Singh and Muhammad and all those people were saying कि हर जगह ये threat है कि visually impaired कैसे cope करें, and we actually get bitten very often. So of course we'll take it up. Our EC will take it up, current EC. So right now, and also of course I'll be there. So thanks so very much. And before we conclude, I'd like to invite Ritul Shukla, who is our co-convener of the current executive committee, to deliver a formal vote of thanks. Ritu. Ritu, are you there? No, ma'am. Where is she? Ritu was, I think there was some network error on her part. Gunjan ma'am, you can do the vote of thank yourself, or I can do it also on your behalf. Oh, I mean, so yeah, I mean, now I think that formal barrier which was there, that is gone, and we Yes. are, informal, and I don't think the formal vote of thanks as such, but still, I'd like to thank all of you. So first of all, I thank this committee for organizing such an amazing session. This is really, sort of hands-on experience where we could hear someone who is so qualified. Um, and sir has also promised to have a lot many sessions. So I thank you so much, sir, for coming, for accepting our invite and being there with us. I also thank our library staff for providing us the technical support and listening to us and being with us whenever we wanted. Our EC, current EC, which is led by Gopal, and all other members, thanks so very much for your untiring effort. I also thank our audience, without whom this entire venture would have been fruitless.
So thanks so much for this Q&A session, which actually gave a hint to our sir, to our dog guru, that we are an audience which is worthy of attention. So thank you everyone for being here. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks so very much. Thank you guys. Thank you all. Thank you for being there and thank you for inviting. And I'm sure this should be a regular event so that हम आगे लेके जाने के लिए we have something to work. ताकि हमें भी लगेगा कि हर 15 दिन कुछ हो रहा है. आपको भी once in a month or once in 2 months, once in 15 days ऐसे करके जाने से we will have a date that we have to progress something and get to it. So Yes. and different minds bring in different ideas. कहाँ किसको क्या connection मिलेगा जिससे क्या अच्छा होगा. It's always for the betterment of coexistence between lovable animals called dogs as well as everybody in the humankind, whether they're visually impaired, normal people with fear हर सबका fear ही होता है. So we'll work on coming out of it and let's see the other good part of dogs in future. Yes, sir. It would be great if you could tell us your email ID. I can write in chat box. AMRUT Yes. at At DOGGURU dog guru DOGG. URU dog guru Yes. Hmm. .in. Is this correct? Absolutely correct. Okay, so guys, you can note down the civil ID. You can always reach her whenever you want. So it's always there. Otherwise, EC will take all your questions, if at all, and organize further sessions. Thanks so very much, everyone. Bye-bye. Bye bye. Yes, Thank thank you. you. Thank Thanks, you everyone. everyone. And yes, thank you everyone. And on 15th of October, we can organize Yes, a that's a big good idea, session on Ram. this. Yes, a very big, grand session on it. Oh, that's amazing. Excuse me, guys. I'm so Yes. sorry. Please. अभी तो क्या हुआ? Now it is Uh, concluded, guys. Bye-bye. Bye-bye.